بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ فقاص اکرم سے۔ بہت شکریہ شیخ فقاص اکرم صاحب اپنے جوائن کے پروگرام میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج تو بڑا جو ہے زبردست کام ہو گیا ہے، جب سے حکومت بنی ہے پہلی مرتبہ کسی بھی معاملے پر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی حکومت ایک پیج پر نظر آئے ہیں، اور وہ ایک پیج ہے آج باقر نجوی صاحب کی جو ہے ایلیویشن سپریم کورٹ میں جو ہونی تھی اس معاملے پہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ نے ان کی ایلیویشن کو سپورٹ کیا، جبکہ 4 ججز نے رپورٹڈلی جو ہے ان کی مخالفت کی، ان کی ایلیویشن کی، لیکن تحریک انصاف کی سپورٹ کی وجہ سے وہ ایلیویٹ ان کے ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا یہ تعاون یا ایک پیج؟ اگر انہوں نے کیا ہے تو کوئی سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، کیونکہ بیرسٹر گور اکیلے نہیں تھے، بیرسٹر علی ظفر بھی میرے خیال میں ان کے بالکل ایسا ہی ہے موجود تھے۔ تو پھر جب آپ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، کنسیڈریشن جو ہے کئی دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے مخالفوں اور آپ کا جو ہے وہ ڈائریکشن ایک طرف ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ایک بڑی جو ہے انٹرسٹنگ ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے مسلم لیگ نون کی، کسی بھی معاملے کے اوپر، خواہ وہ معاشی معاملات ہو، وہ سیکیورٹی کے معاملات ہو امپورٹنٹ ترین، ان پہ بھی آپ نون لیگ کے ساتھ جو ہے ایک پیج پر ہمیں نظر نہیں آئے، اور سیاسی معاملات ہوں کسی معاملے پر بھی آپ ان کے ساتھ ایک پیج پر نظر نہیں، کئی ایسے قومی مفاد کے معاملات ہیں جن پر آپ ایک پیج پر نظر نہیں آئے، مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے۔ پہلا معاملہ ہے جسٹس باقر نجوی صاحب کا، جس پر آپ ایک پیج پر نظر آئے ہیں۔ نہیں، یہ 9-4 سے ہوا ہے، جہاں تک مجھے اطلاع دی گئی جی ہے، ہاں 9-4 سے ہوا ہے۔ اس میں نون لیگ کے کتنے ووٹ ہیں؟ ہمارے 2 ووٹ ہیں، نون لیگ کے بھی 2 ووٹ ہوں گے، تو باقی ووٹ کس کے ہیں؟ تو اس آپ پہ یہ کیوں نہیں بار کونسل کے نمائندے کا ووٹ ہوتا ہے سر اس پہ، اور آپ نہیں میرے اٹارنی جنرل کا اس میں ووٹ ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم ہو سکتا ہے بار کاؤنسل والوں کے ساتھ، یا ہم کسی جج کے ساتھ، یا کسی اور مطلب ہے کہ وکیل ان کہتے ہیں کہ 7 چوں تسی 2 نو علیحدہ کرے، ہو سکتا ہے باقی 5 چوں اسی کسی دن الائنڈ ہو گئے ہوگی، تسی سانو صرف نون لیگ کا الائنڈ کیوں کر۔ بہرحال سر ان ججز نے مخالفت کی ہے کہ جن کو آپ فکری طور پر اپنے ساتھ ہم آہنگ سمجھتے ہیں، وہ منصور علی شاہ صاحب جنہیں تحریک انصاف چاہتی تھی کہ وہ چیف جسٹس بنے، منیب اختر صاحب، انہوں نے مخالفت کی ہے ان کی ایلیویشن کی، لیکن تحریک انصاف نے سپورٹ کی ہے۔ Sir, چیف I'll جسٹس نے get back to مخالفت you. کی ہے۔ This is a serious matter and I cannot be making مطلب ہے کہ ہوا میں کچھ اسٹیٹمنٹ میں نہیں دینا چاہتا۔ کچھ بیک چینل انگیجمنٹس پچھلے جو عرصے سے شروع ہوئی ہے، پچھلے ہفتہ 2 ہفتے سے، کیا یہ ان بیک چینل انگیجمنٹس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے ممکن سر، یا کچھ اور تھا؟ نہیں جی، کوئی ایسی بیک چینل انگیجمنٹ نہیں ہے جس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن کے ووٹ کی بات ہوئی، نہیں سر۔ نہیں پرٹیکولرلی تو نہیں، لیکن میں تعاون کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پہ ایک نظر آئی ہے تھوڑی سی فضا۔ میں اس سے بھی انکار کر رہا ہوں سر، میں وہ بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایسی کوئی بات۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے جیسے بھی ہو گیا، آئندہ بھی اس طرح کے سرپرائزز کا تحریک انصاف کی طرف سے آ سکتے ہیں، یا اس طرح کا سیم پیج نظر آ سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ؟ نہیں، نون لیگ نال کوئی ہم آہنگی شام آہنگی نہیں ہے ساڈی، بات بڑی سمپل سی ہے۔ سر ججز کے ساتھ بھی فکری ہم آہنگی ہو سکتی ہے نا سر کسی کی، تو اس پہ میں اس کو جانتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے جو حالات رہے ہیں، کیا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا؟ سر بھائی میں نے ان کا کیس نہیں پڑھا، اگر فائل میرے پاس ہوتی اوبویسلی اس فائل کی ایکسس دی گئی ہوگی جو لوگ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہے۔ یہ وچ اسی کوئی دیکھو یو نو می، میں کوئی کسی بات سے دوڑ ووڑ نہیں رہا ہوں، میرے پاس انفارمیشن ہوگی تو میں آپ کے ساتھ کھل کے شیئر کروں گا، اور اچھا کوئی ڈیپینڈ کرنے پر چلے ایک ایسے معاملے پہ آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ سے پریس ریلیز جاری ہوئی ہے سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے، کہ اب جو اڈیالہ جیل کے باہر کوئی بھی رہنما خان صاحب سے ملاقات کے بعد ٹاک نہیں کرے گا، بلکہ وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، آپ میڈیا ٹاک کریں گے، تو یہ فیصلہ کس ضمن میں ہوا ہے شیخ فقاص اکرم صاحب؟ یہ سر آپ نے اسی پریس ریلیز میں پڑھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں، جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے اس میں خان صاحب نے وہ جو گفتگو لوگ کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، پھر کئی دفعہ اس میں کچھ ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو فرکشن کا باعث بنتی ہے، یا اس بیان بازی سے جو ہے وہ ڈویژن کا تاثر آتا ہے، تو خان صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے شاید یہ ڈیسیژن لیا ہے۔ بہرحال ہمارا تو قائد ہے جو ان کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پہ، جیسے ان کی ہدایت آئی ہم نے ویسے ہی اس کو ریپروڈیوس کر دیا آپ لوگوں کے لیے۔ ویسے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کا فیصلہ بھی تھا سرفراز جوگر صاحب کا، انہوں نے تحریک انصاف سے اس پہ ایک انڈرٹیکنگ بھی لے رکھی تھی کہ جب ملاقات ہوگی وہاں پہ تو اس کے بعد کوئی میڈیا ٹاک اڈیالہ جیل کے باہر نہیں ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جب یہ انڈرٹیکنگ دی تھی تو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے بڑی سخت مخالفت کی تھی، تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ اسے کہیں یہ سرفراز جوگر صاحب کے فیصلے پر تحریک انصاف نے عمل درآمد کر دیا ہے، یا پھر ان کا فیصلہ جو ایک زبانی انڈرٹیکنگ اس پر؟ عدالت نے فیصلہ تو ذکر ہی نہ کریا کرو سمر بھائی، جی جی، یہ تو ذکر نہیں سی کرنا چاہیے۔ میں تو وہ تعاون کی فضا کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں نظر آئی ہم آہنگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، پہلے تو مجھے جن ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ یہ بتائیں کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس میں کیا عمل درآمد ہوا ہے، کیا ملاقاتیں ویسے کرائی گئی ہیں، کیا ان کی فیملی کو بلایا گیا ہے، علیمہ خان کے ساتھ اس دن کیا ہوا ہے،
उनकी बाकी 2 बहनों के साथ क्या हुआ है, हामिद रजा के साथ क्या हुआ है, अभी अहमद बच्चर हामिद रजा अलामा नासिर को 1 किलोमीटर पीछे रोक के किकर तले पाई रखा 4 घंटे। तो वो तो बातें तो तब उस फैसले की जब जज साहब का अपना फैसला लेटर एंड स्पिरिट में कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा हो, तो फिर लेकिन देखें हमारी आपने तरफ तो से। अमल दरामद कर दिया ना सर, आपकी पार्टी ने तो अमल दरामद कर दिया है। यही अंडरटेकिंग तो सलमान अकरम राजा साहब ने दी थी उनके सामने कि हमारी पार्टी से कोई बंदा भी खान साहब को मिलने के बाद या मुलाकात करने के बाद जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेगा। तो आपके नहीं, ये उस प्रेस तनाजुर रिलीज में में तो फैसला एग्जैक्टली नहीं आपने हुआ। वही फैसला किया है सारा। ये फैसला उस तनाजुर में नहीं हुआ है। खान साहब ने ये फैसला किसी जज के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में नहीं किया है। मैंने आपको कहा कि लोग आते हैं और लोग कई दफा ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर छोड़ते हैं जो असल में हकीकी गुफ्तगू का आकाश नहीं होती है, उससे मसाइल बनते हैं हमारे लिए। तो किस अब जब चीजें ऐसी कौन सी गुफ्तगू थी, कोई रेफरेंस ऐसा अगर आप दे दें कि किसने ऐसी गैर जिम्मेदाराना वो गुफ्तगू की नहीं, खान आई साहब के साथ डोंट थिंक मुलाकात कि के मैं बाद कि अपनी जो आपको पार्टी लगता है कि वो ठीक आई नहीं थी, थिंक सो जिसके तनाजुर में आपने ये फैसला किया सर? आई डोंट थिंक कि कोई मैं रेफरेंस दे अपनी दे किसी पार्टी पार्टी रहनुमा की गुफ्तगू का सर? नहीं, मैं अपनी पार्टी के किसी रहनुमा की किसी गुफ्तगू को यहाँ रेफरेंस नहीं बनाऊंगा। ये हमारे इंटरनल मामलात हैं। मैं अपनी अपने पार्टी फैसले के के अंदर तो रेफरेंस आप खुद अभी आप फरमा रहे हैं कि खान साहब ने कहा कि कुछ लोग जाके ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर देते हैं जिससे नुकसान होता है। Why would you expect the information secretary of a political party would name his own people on a media and say कि फलाने ने कि मैंने और तो तुसी प्रेस रिलीज के अंदर तो आपने हवाला खुद दिया हुआ है ना कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की वजह से किस सब बंदे का हवाला दिया? मैंने किसी का नाम लिया उसमें? नाम नहीं लिया ना, लेकिन अगर आप पार्टी के लोगों की आपने बात की ना, बस तो नाम पार्टी के अभी भी लोग नहीं आगे करते हैं लेंगे, ना बात है जी। नाम अभी भी नहीं लेंगे। सबके लिए मैसेज है। अल्लाह लाओ खैर सलाह इमरान खान का मैसेज है, मेरा जाती मैसेज नहीं। आजम सवाती साहब की वजह से तो नहीं हुआ ये जो उन्होंने रिसेंटली बड़ी नहीं, सख्त मैं बातें कर दी हैं, ये जो उन्होंने एक वो पिन कुरान पॉइंट मजीद नहीं पे हाथ रख के बड़ा सख्त किस्म का बयान दे दिया कि हमने तो पहले दिन से एंगेजमेंट शुरू कर दी थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात बातचीत के लिए आर्मी चीफ के साथ। तो ये उस वजह से तो नहीं है कि जिससे पार्टी के बयानियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है? I will not refer it to anybody, sir. I will not refer to मैं अपनी पार्टी के किसी आदमी सर आप जो है ना शेख साहब, आप तो जो है ना वो टिपिकल जो है ना सेक्रेटरी इत्तलात बनते जा रहे हैं जी। अच्छा, बातें नहीं कर रहे, आपने तो बुट्टी बिल्कुल बंद कर दी आपने। टिपिकल नहीं, आप चाहते हैं मैं नॉट टिपिकल हो जाऊं और अपने ही बंदों की चीख फाड़ करता रहूं जस्ट कि सोशल मीडिया में मुझे 4 व्यूज अपने मिल जाएंगे। ये काम नहीं करूंगा मैं। अच्छा सर, ये बताएं मुझे कि आगे के वाले से अब जाहिर है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप इसे इत्तफाकन कहें या जो भी है फैसला था सरफराज जोगर साहब का कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो सब कुछ हमें होता हुआ नजर आया सियासी कमेटी की प्रेस रिलीज के अंदर कि उसी चीज पे लेटर एंड स्पिरिट जो है अमल दरामद होता नजर आ रहा है। बेशक आप उसे रिलेट ना भी करें, लेकिन चीज तो सर वही है जो फैसला था इत्तफाकिया में कह रहा हूं ना, आप इसे कोइंसिडेंटली कहें या जो भी कहें, आगे इन्हीं सरफराज जोगर साहब के हवाले से या और बाकी चीफ जस्टिस की जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनकी एलिवेशन का फैसला होना सर 18 तारीख को, तो क्या वो भी तरीके से आप सपोर्ट करेगी क्या? किस चीज को? आगे जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनकी मुस्तकिली के वाले से या मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रर के वाले से हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो 18 को जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो होने जा रहा है, तो वहां क्या तरीके से आप सपोर्ट करेंगे सरफराज जोगर साहब की नॉमिनेशन? उसका फैसला तहरीक इंसाफ की लीगल कमेटी करेगी, उससे पहले इजलास करेंगे, उसमें उसका फैसला करेंगे। मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं, बड़ी क्लियर बात है जो सलमान अकरम राजा जिस केस में अपीयर हुए थे, आप डॉक्टर साहब के उस फैसले की बात कर रहे हैं मुलाकातों की, उसमें पाबंदी सिर्फ अडियाला के सामने बात करने की, अडियाला के अलावा कोई भी कहीं भी बात कर सकता था। ये जो आज हमने डायरेक्शन खान साहब की आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसमें सिर्फ अडियाला मेंशन नहीं है, जो अंदर से आएगा वो कहीं भी बात नहीं करेगा। सही है। अच्छा ये बताएं मुझे शेख साहब के अब मौजूदा स्टेटस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एंगेजमेंट की पॉलिसी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें कोई आपको पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है या ऐसी कोई पेशरफ्त हुई है उसमें? पॉजिटिव कोई है उसमें पेशरफ्त या फिलहाल कोई फायदा या कोई इसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? हमारी एंगेजमेंट की पॉलिसी नहीं है, फ्रॉम टाइम टू टाइम इश्यूज के ऊपर एंगेजमेंट्स होती है। खान साहब ने ये बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी रिहाई के हवाले से कोई एंगेजमेंट या कोई डील नहीं चाहते हैं, ना कोई मुज़ाकरात चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, 26 का करताल, 9 मई, इस हवाले से हम मुज़ाकरात के लिए हर वक्त बैठने को तैयार हैं। बैठे थे, नेगोशिएशंस कमेटी में भी बैठे थे, एक नहीं 3 नशिस्तों में बैठे थे, दोबारा भी बैठेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, हम उससे इनहराफ नहीं कर सकते। मगर अगर कोई ये समझे कि खान साहब अपनी जात के हवाले से कोई एंगेजमेंट है, तो हमारी पार्टी इस किस्म की किसी एंगेजमेंट का हिस्सा नहीं। आजम सवाती साहब ने तो इन चीजों का जिक्र नहीं किया, वो तो कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा था कि जाए उनसे बातचीत करें, आप एंगेजमेंट शुरू करें उनके साथ। I am the information secretary of the party. Sawati Saab is not, so I think you should take my words on that. बेशक वो सेक्रेटरी इत्तलात नहीं है, लेकिन पार्टी के वो भी एक जिम्मेदार रहनुमा है और उन्होंने खान साहब को बाकायदा उनका हवाला देकर कहा था कि खान साहब ने मुझे भेजा था। आपस में बैठे हैं ना, और तुम्हारे सामने फिर तो मैं गल्ला ने इज्जत से तुम्हारा दिल करना है, मान जाओ। नहीं तो मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ ना कि उस एंगेजमेंट में कोई आगे पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ आपसे।
नहीं सर, खान साहब की ज़ात के हवाले से तो अपने को एंगेजमेंट जो है खान साहब ने खुद मना किया हुआ है हम्म। सख्ती से। उसके अलावा मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट तो चल रहा होता है कहीं ना कहीं, और उसमें नतीजे आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, तो उस तरह होता है। ज़ाहिर है वो अमेरिकी डॉक्टर्स की मुलाकात जो खान साहब से हुई थी, रिपोर्टेडली जो है वो ये 13 मार्च को मुलाकात खान साहब से हुई थी, खान साहब ने कंफर्म भी किया इस चीज़ को, तो ये भी तो ज़ाहिर है उसी इंगेजमेंट की पॉलिसी का या एक जो हालात बेहतर हो रहे हैं उसी के हवाले से कोई ये एक पेशरफ थी। हो सकता है, आप कह सकते हैं। आप नहीं कहेंगे? नहीं देखें, इमरान खान की ज़ात के हवाले से अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी में हम्म। जो भी आदमी कोशिश करेगा, मेरे वो सारा आंखों पे है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में पड़े बगैर कहना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान में कोई रेडी वाला भी झंडा उठा के निकलता है, एहतजाज करता है कि खान को रिहा करवाना है, उसके लिए वो बेचारा फिर जेल चला जाता है और 4-4 महीने बाहर नहीं आता, मुझे उसको भी दोनों हाथों से सलाम है। और अगर कोई अमेरिका से आके किसी गुडविल में, किसी गुड फेथ में आके खान के लिए कोशिश करता है, तो पाकिस्तानी है तो बिल्कुल उसको भी सलाम है। मेरे हवाले से मैं कोई भी आदमी जो खान के लिए आवाज उठाएगा, वो हमारे दिल के करीब है। ये सिंपल देखे एज ना, दैट। एक तरफ बाक़िर नजफी साहब वाले मामले पे तो एक पेज पे नजर आ रही है मैं नून लीग तरीके साहब, लेकिन जो माइंस एंड मिनरल्स कहते हैं इंपॉर्टेंट शोबा है जो कि पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम से जुड़ा है, उस शोबे में तरीके साहब की तरफ से जो है वो मिला जुला रद्द अमल आता है, रुझान आता है कि देना है, ताउन करना है, नहीं करना, उस पर एक्ट को जो है वोटिंग करनी है, नहीं करनी। दावा उनसे क्या तो ये करना है, वो मामले मैं लगते जानना हैं चाह रहा हूँ कि उसमें क्या है अब बैठने का। तरीके साहब, क्यों ठहर जो कौमी मामला है उन पर आप सपोर्ट करते नहीं हैं? ठहर जी जाओ। जी बोले। ये माइन एंड मिनरल इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, नून लीग वाले मामले लगते नहीं। हुकूमत केपी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है। माइन एंड मिनरल्स का फैसला ये केपी की आवाम की हुकूमत, केपी के आवाम के मुफाद के, खान के एजेंडे के और खान की मर्जी के मुताबिक करेंगे। नून लीग वाले कौन होते हैं? SIFC का इनिशिएटिव है ये माइंस एंड मिनरल्स, जो कि उनके 5 इनिशिएटिव है उनमें से ये एक हमारे है कि बिल में पाकिस्तान के मुआशी हमारे हालात को बिल बेहतर बनाने के में लिए जो है तो वो जिस एग्रीकल्चर के शोबे में बेहतरी के लिए, माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमाकारी के नहीं, लिए मैं आपसे एग्री बड़ी नहीं कोशिशें करता हो हूं। रही हैं। मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं सर। SIFC तो जुमा जुमा 8 दिन हुण बढ़नी पई है। केपी में तो माइंस एंड मिनरल्स जो है, ये डिपार्टमेंट सालों से मौजूद है, जब और से बेशक पूछते डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंस क्या थी आज तक? हमने जो है वो रॉ यहाँ से उठा उठा के सारी चीजें बाहर भेज दी हैं, कोई प्रोसेसिंग पाकिस्तान में नहीं हुई, कोई नहीं तो बड़े आपने इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं प्रोसेसिंग के लेके प्लांट आ लगा सके। लिए हैं। नहीं तुसी हुण प्रोसेसिंग के प्लांट लग गए, को प्लांट तो दसो मैंने तो कब लगा था। उसी पे तो सारा इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंड प्रोडक्ट्स यहाँ से बन बहरहाल के केपी वाले अपना फैसला खुद प्रोसेसिंग होकर करेंगे। यहाँ से चीजें जाए, यहाँ से रॉ केपी मटेरियल ना जाए वाले बाहर पाकिस्तान से, और जो केपी पड़ी है इतना बड़ा पाकिस्तान अनटैप्ड हमारा केपी में 6.1 ट्रिलियन डॉलर का पाकिस्तान के अंदर जखीरा पड़ा है उसको। जी। केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। केपी की आवाम की और खान की मर्जी पे, इनकी उमंगों के मुताबिक हम लेजिस्लेशन करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। ना हम किसी वफाक के पाबंद हैं प्रोविंशियल मैटर के अंदर, और ना हमें कोई इदारा नया या पुराना कोई डायरेक्शन दे सकता है। एंड ऑफ द स्टोरी। अगर ये होता है, इसमें अगर पेशरफ होती है, तो फायदा नून लीग को या किसी और को तो नहीं होना, फायदा तो पाकिस्तान को होना है, केपी की आवाम को होना है। केपी की आवाम अपना मुफाद ज्यादा समझती है, नून लीग वाले मामे ना बने। जिसको वोट दिया है वो अपना मुफाद समझते हैं, और अपने मुफाद की हिफाजत भी समझते हैं, और अपने मादनी वसाइल की हिफाजत और उसका इस्तेमाल भी बेहतर समझते हैं। हमें वफाकी हुकूमत न बताए, न पूछे। बहरहाल वो मादनी वसाइल जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ क्या है, वो मादनी वसाइल तो जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए होते हैं, प्रोसेस करके वो यहाँ पे जो है पड़े रहे पहाड़ों के नीचे, तो उनका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होना। मुझे सर आगे ये बता दें, फाइनली मुझे सर ये बता दें शेख वकास अकरम साहब के जो तहरीक का मामला था, क्या वो फ़िलहाल ख़त्म हो गया है प्लान तहरीक चलाने का, जो ईद के बाद तहरीक चलनी थी? नहीं, JUI की तरफ से बड़े सख्त बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो आपस में इनकी लड़ाइयाँ इतने मसाइल चल रहे हैं, हम अपना क्यों दें ईंधन क्यों बने तहरीक इंसाफ के इस तहरीक का, हमने को क्यों ईंधन देखे, बनाए? मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि मौलाना साहब ने हमसे 15 तारीख तक का वक्त मांगा था। हमारी उनसे जो बात होनी थी हो गई, अब कोई नई बात नहीं होनी। हमारी तरफ से बात मुकम्मल है। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे हम क्लियर कर चुके हैं कि बिल्कुल हम उसको रिज़ॉल्व कर देंगे, और आपके कंसर्न्स पे उसको हम एड्रेस करेंगे। अब वो अपनी शूरा से बात करना चाहते हैं, जब उनकी अपनी शूरा से बात हो जाएगी, फिर वो बैठ जाएंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। शूरा में मामला जाने से पहले ही पार्टी क़यादत की तरफ से बड़ी बददिली का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी कैंप के अंदर, जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े इख्तलाफात एक दूसरे के साथ कोई नहीं, पब्लिकली जो हमारी है वो मुकद्दर है इसका। इन चीज़ों पे हमारी तो कह रहे हैं, उनकी मुकद्दर पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा कामरान है। भुट्टो साहब वो कह रहे हैं कि हम अपने कारकुनान को ईंधन नहीं बनने देंगे इनका। हमने न किसी के कारकुनान को ईंधन बनाना है, ना हम बनाना चाहते हैं। हमारा अपना कारकुन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सबसे एक्टिव कारकुन है, जो अपने लीडर के लिए शहादतें भी देता है, और 26 को शहीद भी हुआ, और सैकड़ों बंदे गोलियों का शिकार भी हुए। हमें किसी के कारकुन को ईंधन नहीं बनाना है। हर कोई अपना मुफाद बेहतर जानता है। सियासी बातें हैं,
सियासी उस पर आप अलायंस करना चाहते हैं। तो ये आप कब अपने तक का ज़िम्मे शेख पे वकास अकरम साहब टाइमलाइन कब तक की है ज़हन में कि अगर जेयूआई नहीं भी आती तहरीक के अंदर तो फिर आप तहरीक में चले जाएंगे उनके बगैर ही? नहीं तो जेयू बिल्कुल चले जाएंगे अगर वो नहीं भी आते, इसलिए कि क्या जेयूआई के साथ इस एंगेजमेंट से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही थी एहतजाज, खान पहले साहब का से बड़ा कर इसरार है रही ना, थी। खान साहब का बड़ा इसरार है जेल से, वो कह रहे हैं स्पेशली, वो कह रहे हैं बार बार जाए मौलाना साहब के पास, उन्हें एंगेज करें, उन्हें जा साथ रहे में हैं, लाएं। बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, खान साहब के हुक्म पे जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, बार बार जा तो रहे मैं हैं। इसीलिए इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ कि इसीलिए टाइमलाइन तो क्या है आप ज़हन में, कब तक ये तहरीक फिर आप शुरू कर देंगे जेयूआई का इंतजार किए बगैर? इसीलिए आप मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर भी रहे हैं, मगर मैं नहीं प्रवोक हो रहा, मैं कोई ऐसी नहीं, बात नहीं कर मैं रहा कोई जी। प्रवोक नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। फाइनली मैं जानना चाह रहा हूँ कि जेयूआई के बगैर ही आप कब तक तहरीक में चले जाएंगे, उनका कब तक इंतजार किए बगैर आप तहरीक में चले जाएंगे? टाइमलाइन क्या है ज़हन में? ये बताएं मुनासिब ना। देखें, 15 तारीख तक तो हमें जवाब दे देंगे, सही है, तो टाइम है। ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि जो जजेस के मामले पे अगर ताउन नज़र आ भी रहा है तो वो ताउन जो है नून लीग के साथ नहीं था, बल्कि वो एक फैसला पार्टी ने अगर किया है तो किया होगा। बहरहाल इस वाले से जो उनके दीगर इशूज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के, उसे तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन तहरीक को लेकर भी इतने ज़्यादा कोई कॉन्फ्रेंस अब तहरीक इंसाफ के कैंप में नज़र नहीं आ रहा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तजिए शामिल करेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल किस जगह जा रही है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।